नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं NBC 24 और मैं हूं आफताब आलम। फ़िलहाल के वक्त में अगर देखें तो पश्चिम बंगाल सरकार और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और चुनाव आयोग के बीच तकरार लगातार जारी है। इसी क्रम में ममता बनर्जी आज दिल्ली के बंग भवन में एक खास प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सीधे तौर पे देश के केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर सीधे तौर पे सवाल उठा दिया। इसके साथ उन्होंने BLO जो पश्चिम बंगाल के इलाके में SIR करने के दौरान जिनकी मौत हुई उनके परिजनों को लेकर वो दिल्ली पहुंची और उस वक्त ही प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। ममता बनर्जी के साथ साथ TMC के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी भी उनके साथ मौजूद थे। ममता बनर्जी ने सीधे तौर पे सवाल ये उठा दिया कि पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से SIR की जा रही है और राज्यों के मुकाबले वो तरीका अलग है। क्या कुछ कहना था, ख़ास तौर पे बंग भवन आपको ले चलते हैं और सुनाने की कोशिश करते हैं कि आखिर ममता बनर्जी ख़ास प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या कुछ कर रही हैं। आइए आपको पहले सुनाते हैं। But this is the only state where they have appointed illegally. It is against of the election regulation, the statutory rules that the roll observer in the name of BJP officers and 8,100 micro observers. They are not listening to DEO, ERO, AERO. They have kept one logo separately. From there they are going to delete all the names, about 2 crores. Now we 58 lakhs already deleted. Now 1 crore 4 lakhs is what earlier it is said logical discrepancies when Supreme Court said that list should be there, proper list. After that they changed the name like this, mismatch, mismap, like this. Suppose I want to tell you one thing. Notice hearing, हाथ तुलून, SIR कैसे? Raise your hand, हाँ. Now, my question is, these role observers, they don't have any action, they don't have any role to play at this time, the SIR process, as per RP Act. But they became the real master and they have been deputed backdoor from the BJP party, but front door, of course, the Election Commission. I don't blame all the Election Commission officials because I respect the chair. But if somebody works only for his master's voice or just like parrot and don't maintain the institution impartially, vindictively they delete the name of the people, the voters. Everybody is raising this question. Bengal media, every day, all the Bengal media, except 1, 2 Godi media, you know. Now it is very popular. Everybody, each and everybody. Can you imagine Nobel laureate Amartya Sen? He's been asked, what is the question? Mismatch. What mismatch? Why there was a gap between parents, the father and mother, the age. Earlier the system was different. Now 25 years boy, if they are willing, they can marry a 40 years girl. If 40 years girl can marry a 60-year man, it is their freedom of choice.
So why there is a gap about 15-20 years between mother and father? Samartya Sen has been served notice. Joy Goswami is a very big poet. He filed the petition in the Supreme Court also. Very popular in Bengal. He is about 80 years old. He also served the notice. Even including doctors, sisters, teachers, youth, women, suppose, understand, realize the reality. I am Mamata Banerjee in English. My title in English it is say Banerjee, but Bengali it is say Bandyopadhyay. Chatterjee it said in Bengal, English, and Bengali it is say Chattopadhyay. Mukherjee it said English, but Bengali they say Mukhopadhyay. Like this, suppose my name is M-A-M-A-T-A, okay? I can write, Bengali it's clear, Mo-Mo-To-Ekar, okay? But English, somebody can write M-A-A-M-A-T-A. Somebody write M-A-M-O-T-A. Somebody write M-A-M-A-T-A. Why this mismatch? Because of this mismatch, all the logistical discrepancy. Is it not to deprive the voter rights? Suppose one Kumar, Bengal Koishu Moyaka Ra Kumar, but English, somebody may write K-U-M-E-R, somebody may write K-U-M-A-R. For that reason, the name is been logistical discrepancy, mismatch, mismap. Then the girl child who married, automatically they go to their in-laws' house, they change their titles, sometimes they write both. It depends on them, it is their freedom of choice. देश का परंपरा है. So they are nowhere. Why? Because how this title change? They would understand that after marry, the women, the girl child, if they wish, they can change their title. Husband title they accept. In-laws house they go, and they shifted from that place to this place. Why? No. Maximum women voters are not there. Now like this, suppose you are a journalist. से एक नोटिफिकेशन जारी करा गया और 24 तारीख तक वो लिस्ट हर जीपी में, हर वार्ड ऑफिस में उसको पब्लिश करना था, लेकिन वो अभी तक बहुत जगह पे नहीं हुआ है क्योंकि द लिस्ट हैज ओनली बीन अपलोडेड ऑन द ERO पोर्टल. द लिस्ट हैज नॉट बीन मेड पब्लिक. सो इलेक्शन कमीशन ऑल्सो हैज वायलेटेड इट्स ओन सेट ऑफ गाइडलाइन समवेयर. और आप CEC के बात कर रहे हैं कि दे आर बोस्टिंग एंड क्लेमिंग कि वी वेर रूड एंड वी डिडंट रिस्पेक्ट देम. आप खाली उनसे इतना पूछ लीजिए कि एक प्रदेश का चुना हुआ मुख्यमंत्री एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर को 6 चिट्ठी लिखा है. 6 चिट्ठी, एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 6 चिट्ठी. एक कभी रिप्लाई तक नहीं दिया गया है. इसमें कौन रूड दिखता है, मैं कि आप? जो आपके सामने है, समथिंग दैट इज बिफोर यू, यू शुड डिराइव योर जजमेंट and wisdom out of something that is right before you, instead of getting into the ambiguities that the election commission is trying to create. 6 चिट्ठी एक प्रदेश का मुख्यमंत्री जिसको 10 करोड़ लोगों ने चुना है,
और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार उन्होंने 6 बार आपको चिट्ठी लिखा, आपने जवाब तक नहीं दिया। अच्छा जवाब छोड़ दो, एक्नॉलेज तक नहीं किया। अगर इतना भी लिख दिया, आई हैव गॉट योर लेटर एंड आई एम लुकिंग इनटू द क्लेम्स यू हैव मेड और द ऑब्जेक्शंस यू हैव रेज्ड एंड आई विल गेट बैक टू यू विद इन स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम, इतना एक्नॉलेजमेंट भी बनता था। इतना एक्नॉलेजमेंट भी अगर नहीं किया है तो रूट कौन दिखता है, हम कि वो? जरा इनसे ये पूछ लीजिए। और हम आज इसलिए यहां पे आप सबको बुलाए हैं कि 12 प्रदेशों में एसआईआर चल रहा है। एसआईआर से किसी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो 2 महीना में आप कर रहे हैं, आज जो बीएलओ के परिवार यहां पे जितने लोग बैठे हैं, सब अपने परिवार के लोगों को खोया है। किसी ने अपना मां खोया है, किसी ने अपना बाप खोया है, किसी ने अपना बेटा खोया है, किसी ने अपना बेटी खोई है, किसी ने अपना पत्नी खोया है, किसी ने अपना पति खोई है। आज जितने लोग बैठे हुए हैं, दे आर विक्टिम ऑफ दिस हेस्टिली इंप्लीमेंटेड एसआईआर। इसी चीज को अगर आप 6 महीने हर बीएलओ को ट्रेन करके, ऐप को सही तरीके से बना के इसको इंप्लीमेंट करते, कौन मना किया था? 2024 के बाद तो कोई चुनाव नहीं था। आप 2024 का जून का महीने से करते, आधा 2026 साल आपके पास, 2024 साल आपके पास होता, पूरा 2025 होता। आप करते 1.5 साल लगा के एसआईआर, कोई पाबंदी नहीं था। आपने एसआईआर का नोटिफिकेशन इशू किया 2025 का अक्टूबर महीने में 27 तारीख को। एसआईआर का इन्यूमरेशन फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करना चालू किया नवंबर में। Bengal was a festival mood. Puja was there, the Deepavali was there, the Chhath Puja was there. उसके बाद नवंबर में आपने डिस्ट्रीब्यूशन किया इन्यूमरेशन फॉर्म। अभी नवंबर, दिसंबर, जनवरी 3 महीने के अंदर 150 परिवार अपने प्यारे, अपने फैमिली के परिवार के लोगों को खो चुका है। 150 मौत हो चुका है और बहुत सारा लोग अभी भी मेडिकल ट्रीटमेंट में हॉस्पिटल में एडमिट है। तो हमें कोई एसआईआर से दिक्कत नहीं है। आप समय लेके, वी आर अगेंस्ट द बॉच्ड अप एसआईआर प्रोसीडियर, वी आर अगेंस्ट दिस अनप्लान्ड मैकेनिज्म एंड एक्सरसाइज। जैसे आपने नोटबंदी किया, भाई कोई प्लानिंग ही नहीं। आज मुझे मन में ख्याल आया, आज से लॉकडाउन है, रात को लॉकडाउन घोषणा कर दिया। देश के करोड़ों लोग, खास करके बाहर जो काम करते हैं, कोई फ्लाईओवर के नीचे सो रहा है, कोई हाईवे पे सो रहा है, कोई स्टेशन में सो रहा है, कोई बाजार में सो रहा है। कितने लोगों के सर के ऊपर छत नहीं है। What is stopping the government and the election commission from planning and rolling out a proper, full-fledged, comprehensive SIR, which is eventually flawless? हमें कोई दिक्कत नहीं है। बंगाल में जो रूल्स एप्लीकेबल है वो बाकी 11 प्रदेशों में एप्लीकेबल नहीं है। लाइक दीदी सेड, 8,100 माइक्रो ऑब्जर्वर ये खाली बंगाल में लगाए गए। आप जरा सवाल पूछिए कि भाई बगल में आपके जहां पे एसआईआर हो रहा है, ना गुजरात में हो रहा है। सबसे ज्यादा डिलीशन देखो गुजरात में है, उत्तर प्रदेश में है, सबसे ज्यादा डिलीशन तमिलनाडु में है, सबसे ज्यादा डिलीशन बीजेपी वाले स्टेट्स में मध्य प्रदेश में है। तो वहां क्यों नहीं हो रहा है एसआईआर? वहां क्यों नहीं हो रहा है माइक्रो ऑब्जर्वर? वहां क्यों नहीं हो रहे रोल ऑब्जर्वर्स? एसआईआर का जो नोटिफिकेशन है 27 तारीख का, उसमें 0.5A 0.5B है, जहां पे साफ लिखा गया है द ईआरओ आर द फाइनल अथॉरिटी, दे आर क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटीज। अब ईआरओ को सुपरसीड करने के लिए माइक्रो ऑब्जर्वर्स को बिठा के इनके बैकएंड से लॉगिन खुलवाया गया है कि मुझे जो चीज मन करेगा मैं केस को डिसमिस कर दूंगा, डिलीट कर दूंगा, किसी को पता नहीं चलेगा। आप अगर थोड़ा बहुत, जो पत्रकार यहां बैठे हैं, थोड़ा बहुत इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में जाएंगे तो देखेंगे ईसीआई नेट वाले जो वेबसाइट है उसमें 2 अलग कॉलम डाल दिया गया है। एक है माइक्रो ऑब्जर्वर्स ऑब्जर्वेशन, एक है रोल ऑब्जर्वर्स ऑब्जर्वेशन। अब जैसे ही वो ऑब्जर्वेशन दे रहा है, अगर वो अग्री नहीं कर रहा है ईआरओ के साथ, तो फिर दूसरा एक पेज में ईआरओ के पास लॉगिन जा रहा है, वहां पे 2 ऑप्शन आ रहे हैं, आई अग्री विद द माइक्रो ऑब्जर्वर, आई डोंट अग्री विद द माइक्रो ऑब्जर्वर। जब वो आई डोंट अग्री विद द माइक्रो ऑब्जर्वर दबा रहा है तो रिमार्क्स का एक सेक्शन आ रहा है, वहां पे रिमार्क्स डाल रहा है एंड द केस इज क्लोज्ड। नाउ इफ ही मिस्टेकनली क्लिक्स इनटू द टैब व्हिच सेज आई अग्री विद द माइक्रो ऑब्जर्वर, योर नेम्स आर ऑटोमेटिकली getting deleted, which is completely
detrimental to the essence of the very exercise that is being conducted on the ground. तो बंगाल में जिस तरीके से आप एसआईआर किए हैं, बंगाल में आपने लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज के केस, हम जब आए 31 तारीख को दिसंबर के महीने में, वो साफ बोले कि हम नहीं करेंगे। भाई कोर्ट ने तो हमने जो कहा उस पर मोहर लगाया, ये तो कोर्ट का आदेश से ही लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के केसेस हुए। लेकिन कोर्ट ने ये साफ कहा था जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज के केसेस है ये आप अलग से पब्लिश करोगे ना। इलेक्शन कमीशन दोनों को मर्ज कर दिया ताकि भाई बीएलओ को और दिक्कत आए, ईआरओस को और दिक्कत आए, डीओस को और दिक्कत आए, जो भी इलेक्टोरल प्रोसेस में इन्वॉल्व है उनके ऊपर प्रेशर बढ़े, उनके ऊपर स्ट्रेस बढ़े। और इसको और एक बात है, इसको इंटेंशन है ओनली डिलीशन नॉट इंक्लूशन। व्हाट अबाउट द न्यू वोटर्स? नथिंग इज क्लियर्ड। इलेक्शन कमीशन आप लोगों को यही कहेगा कि माइक्रो ऑब्जर्वर्स आर ओनली बीइंग अपॉइंटेड टू ऑब्जर्व। मैं यहां पे जितने कैमराज है, आई एम सेइंग दिस ऑन रिकॉर्ड, आई हैव कॉन्क्रीट एविडेंस, मेरे पास वीडियो है, आप चाहोगे तो मैं भेज दूंगा, जहां पे माइक्रो ऑब्जर्वर्स का जो पोर्टल और लॉगिन आईडी क्रिएट किया गया है, इफ द ईआरओ इज agreeing with the micro observer's comment or observation, your name is automatically being deleted. I have concrete proof. And we will submit this before the court of law. That how the chief election commissioner, the entire election commission is misleading. तो ममता बनर्जी ने आज फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये ज़रूर साफ कर दिया है कि वो किसी भी कीमत पर किसी का नाम कटने नहीं देंगी या किसी भी कीमत पर वह पीछे हटने वाली नहीं है। और कहीं ना कहीं चुनाव आयोग से मुलाकात कर भी ममता बनर्जी ने ये साफ ज़रूर कर दिया है कि अगर बेवजह किसी के नाम कटते हैं तो पश्चिम बंगाल की सरकार किसी भी कीमत पर इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। अब देखना होगा कि एसआईआर के रिपोर्ट कुछ ही दिन में पश्चिम बंगाल में आने वाले हैं। इसके बाद इसके परिणाम क्या कुछ होंगे ये तो आने वाले वक्त में तय हो पाएंगे। लेकिन फ़िलहाल के वक्त में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी ने ये साफ ज़रूर कर दिया है कि उनके सीधे निशाने पर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग ज़रूर है। कैमरा पर्सन विनोद वर्मा के साथ आफ्ताब आलम, NBC 24, कोलकाता।